Hello students, today's answer for our discussion is regional variations. Children, we have been discussing regarding the caste system, and in the last lecture we discussed about the linguistic variations in our country, about the different languages, how these languages originated over the years and the different families of languages, right? So today children, we are going to discuss about what are the regional variations in India. Now first of all, if you just observe, we have got n number of states and union territories which are a part of the Union of India. Children, if you talk about the different states and the union territories, so if you go by the number, we all are aware, children, 29 different states and 7 union territories which form the country of India. अभी जितने भी states हैं इंडिया में, they all differ. Quality of people, उनका culture, या फिर for example like the resources that are there. अच्छा, तो ये जो regional variations होते हैं, that means differences in the life of the people according to the region among the different states. And even like for example like the sub regions of each state, मतलब अलग अलग states में तो variations दिखेंगे, at the same time children एक ही state के अंदर अलग अलग regions में भी आपको अलग अलग variations दिखाई देंगे. Now you all are quite aware children that some states are highly developed. कुछ states ऐसे भी हैं children which are already remain backward. Almost like 70 years have passed for our independence. अगर आप ज्यादातर मोस्ट बैकवर्ड रीजन की बात करते हो इंडिया के, तो इट्स नथिंग बट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. Western or southern regions have shown some kind of economic improvement. At the same time, some kind of social development is also observed in these regions. अच्छा, चलो ये आंसर आगे के और दो आंसर से रिलेट करता है. तो रीजनल वेरिएशंस में हम लोग कॉमनली पढ़ेंगे कि लाइक अलग अलग रीजन्स में कौन से वेरिएबल्स को लेके हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम चिल्ड्रन वी विल आल्सो स्टडी अबाउट रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि लाइक व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइबल पीपल इन इंडिया. सो लेट्स बिगिन हियर चिल्ड्रन टुडे बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द रीजनल वेरिएशंस. सो रीजनल वेरिएशंस का चलो सबसे पहला जो हम लोग क्राइटेरिया लेते हैं, इट विल बी समथिंग रिलेटेड टू लिटरेसी. लिटरेसी में क्या होता है चिल्ड्रन? देयर विल बी सर्टेन स्टेट्स व्हिच विल बी हाई इन लिटरेसी एंड देयर आर सर्टेन स्टेट्स व्हिच विल हैव लो लिटरेसी रेट्स. चिल्ड्रन, इफ यू टॉक अबाउट द स्टेट्स लाइक केरला, मिजोरम, त्रिपुरा आता है चलो, एंड देन वी हैव गॉट गोवा, जहां पे आपको दिखेगा कि लाइक द लिटरेसी रेट्स आर क्वाइट हाई. हाँ, but if you talk about the states, children, like if you're referring to Bihar, okay, then we also got Arunachal Pradesh, Rajasthan and Jharkhand. यहाँ पे आपको दिखेगा कि children, the literacy rate is very low. Which is state with the highest literacy rate in India, children, it's none other than Kerala, जहाँ पे आपका literacy rate is almost how much? 94% literacy rate observe कर सकते हो आप यहाँ पे. अच्छा, जबकि बिहार की अगर आप बात करते हो, सो बिहार हैज गॉट अ लिटरेसी रेट ऑफ हार्डली 64%, which is the lowest we can say according to 2011 का सेंसस. अच्छा, अगर आप अलग से फीमेल लिटरेसी की बात करते हो, इफ यू टॉकिंग अबाउट फीमेल लिटरेसी, तो इट्स वेरी लो इन इंडिया. ज्यादातर अगर आप बैकवर्ड स्टेट्स की बात करोगे तो लिटरेसी रेट इज वेरी लो एंड फीमेल लिटरेसी रेट वी कैन से ज्यादातर अमंग द पुअर पीपल. Acha, and it could be one of the reasons for high birth rate in the backward state as compared to the literate states. मतलब literate states में birth rate कम रहेगा और illiteracy जहाँ पे ज्यादा होती है वहाँ पे birth rate children is going to be quite high as compared to the literate states. बच्चों ने second वाला जो criteria आता है, it's based on the birth rate and the death rate. अच्छा, देखते जरा birth rate के बारे में पहले. जितने भी backward states है children of North India, जहां पे विल बी टॉकिंग अबाउट बिहार, देन वी गॉट मध्य प्रदेश, एमपी, राजस्थान एंड यूपी. यू नो चिल्ड्रन, देयर इज अ स्मॉल एक्रोनिम दैट इज डिराइव्ड हियर, जिसको हम लोग बोलते हैं बीमारू. बीमारू का मतलब होता है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी. द बर्थ रेट्स चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी वेरी हाई हियर. क्या होगा बच्चों? द बर्थ रेट्स आर गोइंग टू बी वेरी हाई. अच्छा, एज कंपेयर टू मोर लिटरल सदर्न स्टेट्स, मतलब टॉक अबाउट केरला, TN, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, जहां पे आपको दिखेगा कि बोथ रेट्स आर वेरी लो.
अच्छा, डेथ रेट बच्चों लोग कहाँ पे ज्यादा रहेगा? जो स्टेट्स बहुत ज्यादा बैकवर्ड होते हैं वहां पे आपको दिखेगा कि लाइक द डेथ रेट्स आर क्वाइट हाई. अच्छा, the third criteria for regional variations children is related to urbanization. Children, we totally observe an imbalance in terms of urbanization. मतलब urban population has increased over the years. और ज़्यादातर जो backward regions है, they are very slow in growth of urban population. जैसे कि if you talk about the states like we have got Goa, Mizoram, high concentration of population in the urban areas. जबकि if you refer to states like Madhya Pradesh and Bihar, you'll observe that there is low concentration of urban population. Okay, so the next criteria, children, that we have here, that will be something related to poverty. Actually, India में overall almost 37% of the people they stay below poverty line. That's according to the Tendulkar Committee 2009. अच्छा, प्लानिंग कमीशन की बात करोगे बच्चों लोग तो 2011-12 के हिसाब से we have got almost 21.9% people in India who are staying below poverty line. अच्छा, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट लोगे बच्चों लोग 2014 का तो 11.8% पीपल हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे देयर इज अ वाइड स्प्रेड poverty which is observed in these states, children. And the highest number of poor people you can find in Odisha presently, Bihar, Madhya Pradesh. और कम गरीबी आपको कहाँ पे मिलता है चिल्ड्रन? गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात. यहाँ पे पॉवर्टी का रेट्स ऑलमोस्ट चिल्ड्रन इट रिमेन्स वेरी लो. The next criteria, which is called as the infrastructure development. Infrastructure में भी imbalance मिलता है बच्चों लोग. जैसे कि infrastructure में we'll be talking about transport, then we also talk about communication, banking. और ज्यादातर बच्चों लोग जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे आपको दिखेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्विसेज बहुत कम मिलेगा. In fact, you'll see like 50% of the villages in India ज्यादातर बैकवर्ड स्टेट्स में मिलते हैं. जिसके लिए अभी भी मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताया था, बीमारू स्टेट्स. बीमारू का मतलब क्या था बच्चों लोग? स्टेट्स बीमार होते हैं. इसमें कौन कौन आते हैं पता है आपको? बीमारू मीन्स बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. They do not have proper roads, okay, lack of transport facilities. That means they are overall backwardness that they show as far as infrastructure is concerned. The next criteria, children, that's the level of unemployment. Unemployment कहाँ पे ज्यादा और कहाँ पे कम होता है देखते हैं. अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट लाइक ज्यादातर सब स्टेट्स में दिखाई देगा, लेकिन कहीं पे हाई होता है और कहीं पे लो होता है. 10% से ज्यादा लिटरेसी रेट जहां पे आपको मिलता है चिल्ड्रन, तो उधर जैसे कि केरला, गोवा, तमिलनाडु. और इफ यू कम टू स्टेट्स लाइक ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश एंड यूपी, the unemployment rates you'll find them lower, but the laborers are exploited with very low wages. लोगों को कम पगार देके वहां पे exploit किया जाता है. ओके, फिर आता है चिल्ड्रन इंडस्ट्रियलाइजेशन. कुछ स्टेट्स है चलो जहां पे इंडस्ट्रीज आर हाईली डेवलप्ड. उसमें आता है जय महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, then we got Karnataka. They have made a lot of good progress in industrialization. Like in certain states, if you talk children, you got some eastern states na, which are very backward in industrialization, like Kerala and Andhra Pradesh. वहाँ पे आपको ज़्यादा industries नहीं दिखेंगे, so they depend upon the primary sector for their development. फिर children, we talk about the income inequalities. Okay, that's rich and poor का gap. In India, we find glaring income inequalities, mostly high in populated states. You'll find Bihar, Madhya Pradesh, then we got Rajasthan and UP. वापिस से वही, कहीं पे भी कुछ बुरा होता है बच्चों लोग बीमारू स्टेट्स का नाम लेने का, कुछ अच्छा होता है तो फिर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब का नाम ले सकते हो आप. यहाँ पे लो वेजेस एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर फॉर ऑक्यूपेशंस, तो यहाँ पे आपको इनकम इनइक्वालिटीज ज्यादा दिखेंगे. फिर वी गॉट द जेंडर रेशियो. Gender ratio, we know it's the number of females per 1,000 males. तो चलो इन इंडिया ओवरऑल जो जेंडर रेशियो आता है, इट्स फेवरेबल फॉर
मेल्स, लेकिन बहुत सारे इम्बैलेंसेस दिखाई देंगे आपको. But चलो केरला is the only state where the gender ratio will be favorable to the females. It's a state where females outnumber males. Children, Haryana is the worst state as far as the gender ratio is concerned. जहाँ पे like केरला में 1084 girls children per 1000 boys. If you look at the state of Haryana, it's 877 girls per 1000 boys. So southern states are better in terms of female male ratio, or northern states they show a deteriorating gender ratio. तो गर्ल्स का नंबर में चलो साउथ में ज्यादा आएगा, नॉर्थ में थोड़ा कम आता है. क्यों? विल बी स्टडिंग इन द कमिंग चैप्टर्स चिल्ड्रन. अच्छा, फिर चिल्ड्रन वी गॉट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ. तो ये भी आपको रीजनल वेरिएशंस दिखाई देंगे. व्हाट डू यू फील चिल्ड्रन, हु लिव्स मोर बायोलॉजिकली, द मेल्स और द फीमेल्स, बॉयज या फिर गर्ल्स, किसका लाइफ ज्यादा आता है? इट्स द फीमेल्स. Females are expected to live longer than the males. Okay, why? Again, children, there could be many sociological or socio-economical reasons behind that. But among the females, you know, like they celebrate one festival, what a Purnima they call na, जहाँ पे wives prayer करती है for long life for their husbands. Okay, but I don't know how does that actually work out. क्योंकि औरत लोग ज्यादा जिंदा रहती है, हस्बैंड जल्दी मर जाते हैं. तो समझ में कौन सा प्रेयर करके आते पता नहीं, बट दे एक्चुअली ऑब्जर्व दैट द लाइफ ऑफ द फीमेल्स इज मच लॉन्गर देन द मेल्स वी कैन से. हाँ, बट देयर कुड बी सर्टेन स्टेट्स ऑफ इंडिया जहाँ पे फीमेल्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुड बी लेस. जैसे कि चिल्ड्रन अगेन गो बैक टू बिहार, मध्य प्रदेश एंड यूपी. ओके, वहां पे फीमेल्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम रहेगा बिकॉज डिग्रेडेड लाइफस्टाइल ऑफ द फीमेल्स. मच इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन फॉर देयर न्यूट्रिशन. दे आर नॉट allowed to educate. Many of them are not allowed to be employed. Even if they are employed, they have to leave their jobs after marriages because husbands don't allow their wives to work. That is one general tendency that we observe in India. Why? Again, lots of reasons could be there. अच्छा, एक जनरल ओपिनियन जहाँ पे दिखता है कि लाइक अगर एक अच्छा सा जॉब भी होता है फीमेल्स के लिए, तो भी शादी के बाद हस्बैंड क्या बोलेगा कि लाइक काम करने की जरूरत नहीं है, मैं कमा रहा हूँ ना मस्त ऐश करने का. क्या कमा रहा हूँ? 7,000 रुपए पर मंथ. इसमें ऐश कैसे होता है पता नहीं, बट दे डोंट वांट देयर वाइफ्स टू गो आउट. मे भी डर लगता है, बाकी सब लोग देख लेंगे मेरी बीवी को करके, ये लोग खुद जाके दूसरी की बीवियों को देखते हुए चलता है. बट दैट्स द conservativeness of the Indian males that we have. So subdued we can say, they are always considered sensitive, and the male Maharajas they always want to dominate, so it comes into every field we can say. Acha, after that children, next wala jo as compared to southern states children like Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka, the expectancy, life expectancy of females could be higher. वहां पे आपको फीमेल्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा दिखाई देगा. ओके, नाउ कमिंग, ये हमने पढ़ा बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. दीज आर रीजनल वेरिएशंस. अभी हम लोग देखते हैं कि लाइक रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब गांव के लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और शहरों के लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. तो प्रेजेंटली लेट्स बिगिन व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू ऑब्जर्व अमंग द रूरल पीपल. Now, we have heard children in our lower standards that India is a land of villages. अगर 2011 के सेंसस की बात करोगे आप तो चिल्ड्रन वी हैव ऑलमोस्ट गॉट ओवर 6 लाख विलेजेस इन इंडिया, और इसमें से 68.84% ऑफ द पॉपुलेशन चिल्ड्रन लिव्स इन विलेजेस, और जो बचता है 31.16% ऑफ द पॉपुलेशन दैट लिव्स इन द अर्बन एरियाज. 7,700 टाउन्स है बच्चों and cities, and almost like 6,34,000 से भी ज्यादा villages है इंडिया में. ठीक है,
अभी गांव के लोगों के बच्चों फीचर, सबसे पहला ऑब्वियसली गांव के लोगों को टाइम पास के लिए एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कास्ट सिस्टम। वो तेरा रिलीजन, ये मेरा रिलीजन, ओके, मेरा रिलीजन कितना अच्छा है, तुम्हारा वाला कितना खराब है, मेरा भगवान कितना पावरफुल है, तुम्हारा कितना वीक है, ऑल दोज थिंग्स। इट्स बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ द एग्रीकल्चर चिल्ड्रन। 3-4 महीना खेती में और फिर बच्चे हुए 5-6 महीना ही रिलीजन में इंटरेस्ट दिखाते हैं लोग। सो कास्ट सिस्टम इज वाइड स्प्रेड, मतलब यू वुड नॉट फाइंड एनी पर्टिकुलर विलेज विदाउट द कास्ट सिस्टम, राइट। और बहुत सारे कास्ट होते हैं बच्चों लोग जहाँ पे मतलब किसी किसी विलेजेस में एक पर्टिकुलर कास्ट डोमिनेट करता है, और कास्ट के अंदर भी चिल्ड्रन फाइंड लॉट ऑफ इंटरडिपेंडेंस वी कैन से, क्योंकि ऑक्यूपेशंस स्पेशलाइज्ड होते हैं। अच्छा, when we live in the city children we hardly bother to know what is the religion of the people around, but in if you come to the villages children, that's one of the most important and dominating factor, like we just want to find out what is the caste of the other person. Second children, it's like intimate relations. गांव के लोगों में बच्चों लोग people recognize each other face to face, मतलब पूरे के पूरे गांव का लोगों का बायोडेटा लेके घूमते हैं हम लोग, कौन कहाँ पे किस, कौन कौन से गांव से, किसकी बीवी कौन से गांव से आती है करके, किसको कितने बच्चे, किसके बच्चे ने कितना पढ़ाई किया, वी कैन टेल एवरीथिंग from looking at face children. But does it happen in the cities? No, we hardly acquaint ourselves with familiar faces in the city children. और गांव के लोगों में बच्चों पता है ये लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है ना, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, रिलेशंस होते हैं, पड़ोसी होते हैं बच्चों लोग, नेबर्स, they're almost equal to our families now, we get along them, celebrate festivals, okay. People hardly lock their houses in the villages because neighborhood, if for example like neighbors is a very meaningful word, but if you come to the cities you find exactly the opposite. वहां पे दरवाजे के ऊपर लिखा रहता है बच्चों लोग क्या, trespassers will be prosecuted, मतलब they build those walls and just want to keep secret all their lives we can say, right. अच्छा, फिर आता है चिल्ड्रन द नेक्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन। अच्छा, रूरल वुमेन वुड बी वेरी मच डिपेंडेंट ऑन देयर मेन, फॉर एग्जांपल, या फिर आई वुड से द मेल काउंटर पार्ट्स डिपेंडेंट रहते हैं। अच्छा, और उनको फिर पता है बच्चों लोग शादी एक सपोर्ट सिस्टम होता है, फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अच्छा, रूरल वुमेन बच्चों लोग जनरली खुद को इंडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके लेते हैं और ज्यादातर उनकी पहुंच कहां तक, खेत तक। दे आर वेरी मच अटैच टू देयर फैमिली मेंबर्स। अच्छा, और वो लोग खुद को फैमिली के कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं एंड दे मेक सैक्रिफाइसेस इन द इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली। सो फॉर देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट component is the family we can say children, and they again they enjoy a secondary position we can say in the families. They are not included while making any decisions regarding the family. They do not have any economic independence. They do not control their own income. They do not have any decision when it comes to the career of the children. In fact, they are not even allowed to decide like the number of children that they have. It's again the prerogative of the husbands. अच्छा, फिर आता है चिल्ड्रन इज द ऑक्यूपेशन। अच्छा, गांव के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन चिल्ड्रन वी आर अवेयर इट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। 90% से ज्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। अच्छा, तो एग्रीकल्चर जितना प्रॉस्पर करेगा तो विलेज के लोग उतने ही प्रॉस्पर कर सकते हैं। फिर साइज ऑफ द पॉपुलेशन, अभी अभी मैंने बताया था आपको, गांव में 68.84% ऑफ द पॉपुलेशन स्टेज देयर, राइट। अच्छा, जापान में बच्चों लोग यू फाइंड 9% पीपल स्टेइंग इन विलेजेस, ऑस्ट्रेलिया 11%, यूएसए 18%, इंडिया में पूरा इंडिया ही बच्चों लोग गांव में रहता है। एंड द मेन रीजन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया इज ड्यू टू द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। 55% से ज्यादा लोग बच्चों लोग इंडिया में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, एंड ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट फैक्टर majority of the population is concentrated in the rural areas. Then children, the sixth one, location pattern, बताया था मैंने आपको 6,41,000 विलेजेस है अपने यहाँ पे। अच्छा, 4,000 से ज्यादा ऐसे विलेजेस है जहाँ पे 10,000 से आसपास पॉपुलेशन मिलेगा, और कम से कम 2,36,000 ऐसे विलेजेस है बच्चों जहाँ पे 500 से भी कम लोग रहते हैं। Then children, we have the literacy rates.
गांव का लिटरेसी रेट बच्चों लोग मतलब टोटल लिटरेसी रेट कितना था 74%. ओके, रूरल लिटरेसी रेट वाज मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स यू फाइंड अराउंड 50% पीपल, क्योंकि गांव में बच्चों लोग यू फाइंड लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज. ओके, बहुत सारे गांव में स्कूल्स नहीं होते, स्कूल्स होते तो बच्चे नहीं होते हैं, राइट. स्कूल्स और बच्चे दोनों भी होते तो टीचर्स नहीं होते हैं. कहाँ कहाँ पे ऐसे भी होता है कि लाइक दे डोंट इवन अफोर्ड अ ब्लैक बोर्ड. और मेजॉरिटी ऑफ द रीजन कुड बी लाइक द पॉवर्टी अमंग द रूरल मासेस. अच्छा, फिर गांव के लोगों का एटीट्यूड कैसे रहता है, तो इट्स अ कॉन्जर्वेटिव एटीट्यूड. कॉन्जर्वेटिव मतलब लाइक दे आर नॉट able or they are not ready to take much of risk, we can say. They just want to stay as they are. मतलब कुछ भी रूल्स, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम, दे डोंट वांट टू अंडरगो एनी चेंजेस. मतलब ज्यादातर लोग दूसरे लोगों के ओपिनियन या फिर बिलीफ से जाने का. एंड मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन इंडिया आर बैकवर्ड मेनली बिकॉज ऑफ द कॉन्जर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ द विलेजेस. मतलब दूसरे लोग जो करते हैं वैसे ही, यू कैन नॉट डू समथिंग डिफरेंट. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, मंदिर में जाके हम लोग वो बेल बजाते हैं ना, आधे लोगों को पता नहीं होता कि हम लोग बेल क्यों बजाते. सामने वाला बजाते तो हम लोग उससे थोड़ा ज्यादा जोर से बजा के जाते हैं. क्यों? लेकिन व्हाट इज द मेन रीजन? हाँ, तो वी डोंट ट्राई टू फाइंड आउट दैट रीजन चिल्ड्रन. इट्स लाइक बिलीफ. बिलीफ्स कैसे होते पता है बच्चों लोग? जस्ट कोई कर रहा है उसके लिए हम लोग भी करते हैं वैसे ही. दैट्स द मेन रीजन. बिलीफ्स को अगर आपको अच्छे से समझ के लेना है बच्चों लोग, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू अ स्मॉल इंसिडेंट जो आपको बताएगा बच्चों लोग कि लाइक बिलीफ्स बेसिकली होते क्या है. एक बार कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. कुछ मंकीज को जमा किया था एक छोटे से गार्डन में, और मंकीज को वहां पे लाने के बाद उधर बच्चों लोग एक लैडर रखा था. लैडर के ऊपर थोड़ा सा कुछ एक कंटेनर जिसमें कुछ गर्म पानी था. तो और फिर वहां पे कुछ बनानास दिखते थे. जैसे कोई वो मंकीज वहां पे नए थे, जैसे उनको बनानास दिखते तो वो लोग वो लैडर के ऊपर क्लाइंब करने की कोशिश करते थे. जैसे वो लैडर को हाथ लगाते तो ऊपर से बहुत सारा गर्म पानी वो बाकी सब बंदरों के ऊपर गिर जाता था. तो बाकी सब बंदरों को गुस्सा आता था कि इसकी वजह से हम लोगों को मतलब गर्म पानी फेस करना पड़ा. तो बाकी सब बंदर है ना, वो बंदर जो सीढ़ी के ऊपर चढ़ने जा रहा था ना, उसको पकड़ पकड़ के धोते वो लोग. अच्छा, लेकिन अगले दिन बच्चों लोग वापिस से वही ऊपर बनानास देख के किसी ना किसी बंदर का तो मन करता है ऊपर जाने का. अभी कल से उन्होंने सीखा नहीं, क्योंकि उनका नाम ही क्या होता है बंदर. तो आज वापिस से कोई बंदर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो बाकी सब बंदर उसको पकड़ पकड़ के मारते हैं फिर. राइट, द थर्ड डे अगेन द सेम थिंग हैपन चिल्ड्रन. कोई बंदर ऊपर जाता है, ऊपर से बहुत सारा गर्म पानी बाकी सब बंदरों के ऊपर, और सब बंदर मिलके उसको धोते हैं. फिर ये साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उसमें से एक बंदर को बाहर निकाला और वहां पे एक नया बंदर डाल दिया. अभी जो नया बंदर आया था उसको पता नहीं था उधर हर रोज क्या होता है करके. तो आज जैसे उसने वहां पे बहुत सारे बनानास देखे तो सीढ़ी के ऊपर चढ़ ही रहा था बनानास खाने के लिए, तब तक वो सीढ़ी को हाथ लगा रहा था तो बाकी सब बंदरों ने पकड़ पकड़ के मारा उसको. अभी यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये बंदर उसको क्यों मार रहे हैं. क्योंकि बच्चों लोग एक बिलीफ बन गया कि जो भी सीढ़ी की तरफ जाएगा मारने का उसको. लेकिन सवाल ये आता है, ये बंदर को भी बेचारे को पता नहीं कि बाकी के सब लोग उसको क्यों मार रहे हैं करके. उसकी वजह से पानी गिरा था क्या ऊपर से? नहीं. So children, this becomes something what is called as belief, and we all are a part of that. तो जब भी आप कुछ काम करोगे तो we need to find out कि why, मतलब उसके पीछे कोई वैलिड रीजन है क्या. राइट. अच्छा, फिर आता है बच्चों लोग द अनएम्प्लॉयमेंट का रेट. अभी अनएम्प्लॉयमेंट में रेट में आपको कुछ वर्ड्स दिखेंगे, CDS, and we also have found something like CWS and UPS. I'll just tell you the small meaning of this in short. CDS होता है बच्चों लोग करंट डेली स्टेटस, मतलब डेली बेसिस पे जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं. CWS मतलब बच्चों लोग वीकली स्टेटस पे जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं. और UPS मतलब बच्चों लोग जनरल यूजुअली जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं. राइट. सो डेली स्टेटस पे आपको दिखेगा कि लाइक अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स कुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज. ओके, तो यहाँ पे कुछ एस्टिमेट्स भी दिए. करंट डेली स्टेटस के हिसाब से चलो 5.7% वर्कर्स वर अनएम्प्लॉयड. ओके, एज कंपेयर टू 5.5% इन द अर्बन एरियाज. यूजुअल स्टेटस की बात करोगे तो इट्स 1.7% और 3.4% इन अर्बन एरियाज. पॉइंट नंबर 10 चिल्ड्रन, इट्स टॉकिंग अबाउट द एक्सपोजर ऑफ मीडिया. बच्चों गांव में रहने वाले लोग कितने एक्सपोज होते हैं मीडिया के सामने. ज्यादातर लोगों को बच्चों लोग कहाँ तक टीवी होता है घर पे या फिर न्यूज़पेपर आता है. अच्छा, एक क्यों? क्योंकि दिस लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ लाइक मोर ऑफ
पॉवर्टी वी कैन से। अच्छा, ज्यादातर बच्चे लोग खुद को कैसे एक्सपोज करते थे? रेडियो के जरिए। हाँ, गवर्नमेंट के जितने भी कैंपेन्स होते हैं, फैमिली वेलफेयर, ओके, या फिर सोशल इश्यूज, ये ज्यादातर गांव के लोगों तक नहीं पहुंचते क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो न्यूज़पेपर और टीवी को भी एक्सेस नहीं होता है। एंड देन वी हैव गॉट दी पॉइंट दैट इज टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन पॉवर्टी। पॉवर्टी के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। सो गांव के लोगों को अगर आप देखोगे तो विल फाइंड ऑलमोस्ट 41% ऑफ द पीपल हु आर स्टेइंग बिलो पॉवर्टी लाइन। और ज्यादातर उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, आप ज्यादातर गरीबी आपको क्यों दिखता है बच्चों? गांव के लोग गरीब क्यों होते हैं? क्योंकि गांव के लोगों में पॉपुलेशन ज्यादा होता है, ओके, और कुछ ज्यादा काम नहीं तो पॉपुलेशन तो बढ़ी जाता है। एंड ज्यादातर जो पुअर लोग है उसमें दिखेगा कि लाइक पॉपुलेशन इज हाई। जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, ये फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। जो साहूकार होते हैं चलो मनी लेंडर्स, वो फार्मर्स को मतलब लाइक दे विल इन्वॉल्व इनटू दिस मैल प्रैक्टिसेस, पैसा देने का, फिर ज्यादा इंटरेस्ट लेने का, ओके, या फिर घर वगैरह हड़प लेने का। एंड गवर्नमेंट के जितने भी एंटी पॉवर्टी मेजर्स आते चिल्ड्रन, दे आर नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली वी कैन से, राइट। फाइनली चिल्ड्रन वी गॉट दी वर्क पार्टिसिपेशन रेट। अच्छा, रूरल एरियाज में मेल्स का वर्क पार्टिसिपेशन रेट आता है चलो 53%। अर्बन एरियाज में कितना? 53.8। इट्स ऑलमोस्ट लाइक इक्वल वी कैन से। फीमेल वर्कर्स की बात करोगे तो यू फाइंड विलेजेस में 30% रेट आता है वुमेन का वर्क पार्टिसिपेशन रेट, और अर्बन एरियाज में इट्स हाउ मच? 15.4। तो चलो आप इसका एक डिस्टिंग्विश का टेबल बना सकते हैं हम लोग। कौन सा? अर्बन और रूरल का। तो मैं आपको, या फिर आप अर्बन का भी अलग से बना सकते हो, पॉइंट लेने का, फिर बताने का ज्यादा कहाँ पे कम कहाँ पे होता है। अर्बन कैरेक्टरिस्टिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो इन द कमिंग लेक्चर चिल्ड्रन आई विल बी टीचिंग यू अबाउट अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, एंड देन ऑलमोस्ट ओवर with this chapter that we have started. That's all for today. Thank you very much. Bye everyone. See you in the next lecture.